good morning to all Sampurna students. Today we will do English class 8 chapter number 2, that is the tsunami. Tsunami is the chapter's name. So before you read, look at the map of the Andaman and Nicobar Islands given here. Here is the map of Andaman and Nicobar Island. Here it is North Andaman, Middle Andaman, Lower Andaman. This is Port Blair. Port Blair एक अंडमान और निकोबार में जगह है. And then Andaman Sea, here it is, and after that Little Andaman, because it's the smallest part, small part, so it is called Little Andaman. So North, Middle, Lower, and Port Blair, then Andaman Sea, and then Little Andaman. These are Andaman and Nicobar Islands. Here comes Indian Ocean, here it is. Then Car Nicobar, it is here, Car Nicobar, this is Little Andaman, after that Car Nicobar, and then Nicobar Island. These are Nicobar Island. This is Andaman Island and this is Nicobar Island. Nicobar में सबसे पहले Car Nicobar, then this is Teresa, this is Teresa, this is Non-Kauri, okay, this is Non-Kauri, and then this is Kachal, here it is Kachal, then Little Nicobar and Great Nicobar. These are all the Nicobar Islands. Okay. So this is the description about the map of the Andaman and Nicobar Islands. After that, now read the sentences below. Rewrite the incorrect ones after correcting the mistakes. Kachal is an island. So Kachal आपको यहाँ पे island दिख रहा है. तो यहाँ पे mention करेंगे yes or no. Number 2, it is a part of it is a part of the Andaman group of islands. Yes. Number 3, Nankauri is an island in the Nicobar group. Nankauri किधर है? निकोबार में है या अंडमान में है? तो वो आपको मेंशन करना है. Number 4, Kachal and Nankauri are more than 100 miles apart. क्या आपको लगता है कि ये 100 miles apart है, मतलब दूरी इनकी 100 miles है, कचाल और इसकी. ठीक है, कचाल यहाँ पे है और नानकावरी यहाँ पे, तो इसकी दूरी कितनी है वो मेंशन करना है, यस और नो. नंबर 5, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया. अंडमान निकोबार आइलैंड वेस्ट में है या ईस्ट में है, यू हैव टू मेंशन दिस. 6, द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स. अब हम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या पूछ रहे हैं, निकोबार आइलैंड अंडमान के नॉर्थ साइड में है, तो ये आपको यस और नो में आंसर करना है by correcting the mistakes also. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. मतलब समुद्र के अंदर जो earthquake आती है, भूकंप आता है, उसको हम सुनामी बोलते हैं. बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. Here what it wants to say, that on 26 December 2004, means 26 December 2004 को सुनामी आई थी. कहाँ? थाईलैंड में और इंडिया के कुछ पार्ट्स में, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड तमिलनाडु कोस्ट. तमिलनाडु के कोस्ट पर भी इफेक्ट पड़ा था उसका. यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपको लगता है कि सुनामी का सेंस एनिमल्स को होता है? मीन्स जब कहीं भूकंप आता है तो एनिमल्स को पहले से उसके बारे में कुछ पता चलने लगता है, सिक्स्थ सेंस उसका काम करने लगता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड चैप्टर, द सुनामी. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago means the group of islands. Means जो जितने अंडमान एंड निकोबार में जितने सारे भी आइलैंड्स हैं, ये सारे ग्रुप हैं एक तरह से ना, तो इसको हम आर्किपेलागो की तरह बोलते हैं. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. Ignatius एक मैनेजर का नाम है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर है कछाल में. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उसकी वाइफ ने उसे 6 AM मतलब सुबह के 6 बजे ही उठा दिया, क्योंकि उसको earthquake फील हुआ था, मतलब उसको भूकंप के झटके से महसूस हो रहे थे.
Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Here इग्नेशियस ने क्या किया, वो 6 बजे उठे तो उनको भी अर्थक्वेक के झटके महसूस हुए, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी टीवी को टेबल पर से उतार कर जमीन पर रख दिया ताकि वो गिर के टूटे नहीं. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस. उसके बाद फैमिली कहाँ गई, घर के बाहर चली गई, रश्ड आउट. व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग. ट्रेमर्स मीन्स भूकंप के जो झटके थे उनके लिए कहा गया है, जो स्लाइट शेकिंग होती है अर्थ की, जो हल्के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, उसको ट्रेमर्स बोलते हैं. जैसे ही वो झटके शांत हुए, रुके, दे सॉ द सी राइजिंग. उन्होंने देखा कि समुद्र उठ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है. इन द केओस एंड कंफ्यूजन. केओस हियर मीन्स, केओस मीन्स होता है जब हमें कंफ्यूज रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, जस्ट कंफ्यूजन जिसको हम कहते हैं, और परेशान होते हैं. दिस इज केओस. इन द केओस एंड कंफ्यूजन 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. यहाँ पे कह रहे हैं कि इग्निशियस के 5 चिल्ड्रन होते हैं. 2 of them, दो उनमें से 2 जो हैं, एक ने अपने मामा जी का हाथ पकड़ लिया, मदर्स ब्रदर का, और दूसरे ने मदर्स फादर का, मतलब अपने नाना जी का हाथ पकड़ लिया. एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी दिशा में भागने लगे. ही नेवर सॉ देम अगेन. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इग्निशियस ने फिर दोबारा उन बच्चों को कभी नहीं देखा, मतलब उन्हें लहरें अपने साथ उड़ा ले गई थी, डूब गए थे वो लहरों में. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. और उसकी जो वाइफ थी वो भी नदी में, समुद्र में बह जाती हैं. ओनली द 3 other children who came with him were saved. और जो 3 बच्चे, बाकी जो 3 बच्चे थे उनके, जो उनके साथ थे, सिर्फ वो बच जाते हैं. संजीव, अब यहाँ पे दूसरी स्टोरी है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई इग्नेशियस की स्टोरी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर थे कछार में, ये उनकी स्टोरी थी. नाउ देयर इज अनदर स्टोरी. संजीव वाज अ पुलिसमैन. यहाँ पे पुलिसमैन की बात हो रही है, जो कि जिनका नाम संजीव है. संजीव वाज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कछाल, जो कछाल में वर्क करते हैं, कछाल आइलैंड पे, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. He somehow managed to save himself. उसने अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचा लिया. His wife और his baby daughter from the waves. उन्होंने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को और खुद को बड़ी मुश्किल से वहां से बचा लिया, नदियों के, समुद्र की लहरों से बचा लिया. But then he heard cries for help from the wife of John. उन्होंने क्या सुना, खुद तो बच गए, सब अपने परिवार को बचा लिया, बट उनको एक आवाज आई, एक मदद मांगने के लिए चिल्लाहट की आवाज आई. कौन चिल्ला रहा था, वो वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की वाइफ चिल्ला रही थी. अब ये जॉन कौन है, जॉन जो है वो गेस्ट हाउस का कुक है, जहाँ संजीव रहते हैं वहाँ के जो गेस्ट हाउस का कुक था, रसोइया था, वो जॉन था. जॉन की वाइफ चिल्ला रही थी हेल्प के लिए. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर. संजीव पानी में कूद पड़ा उसको बचाने के लिए. टू रेस्क्यू हर, रेस्क्यू हर मतलब बचाने के लिए. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. और दोनों ही उस लहर में बह गए. 13 year old, अब ये स्टोरी संजीव की कंप्लीट हो गई. नाउ 13 year old मेघना की स्टोरी है ये. 13 year old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 other people. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मेघना नाम की 13 साल की लड़की थी, वो और उसके पेरेंट्स, 77 दूसरे लोग भी थे, वो सारे लहर में, जो समुद्र की तेज लहरें थी, ऊंची ऊंची लहरें थी, उनमें डूब गए, बह गए साथ में. शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी. और वो समुद्र में 2 दिनों तक तैर रही थी. होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर. और एक लकड़ी का दरवाजा था, वो पानी में तैर रहा था, उसके सहारे वो 2 दिनों तक तैर रही थी पानी में. 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her. मतलब वो बता रही है कि हेलीकॉप्टर्स उसके सर पर से 11 टाइम्स गुजरे, उसने उन्हें 11 टाइम्स देखा, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन लोगों ने उसे नहीं देखा. किसे, मेघना को. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze.
यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑथर बता रहे हैं कि जब वो लकड़ी पे मीन्स जो लकड़ी के दरवाजे पर तैर रही थी तो वो बेहोश हो गई थी वहाँ पे, और जब वो उसको होश आता है तो वो क्या देखती है कि वो लहरों के सहारे किनारे पर आ गई थी, समुद्र के किनारे आ गई थी बिल्कुल बेहोशी की हालत में। ये स्टोरी थी मेघना की। नाउ अलमाज जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। अलमाज जावेद है जो एक लड़की है वो 10 ईयर्स की है। She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. यहाँ पे बता रहे हैं कि अलमाज जावेद एक लड़की है, वो कार्मल कॉन्वेंट में पढ़ती है जो कि पोर्ट ब्लेयर में एक स्कूल है, और उसके पापा वहीं पर पेट्रोल पंप में काम करते हैं, उनका पेट्रोल पंप है। हर मदर रहीला's होम वॉज इन लैंडकाउरी आइलैंड, और उसकी मम्मी जो रहीला है उनका घर लैंडकाउरी आइलैंड पर है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और पूरी फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने वहाँ जाती है लैंडकाउरी आइलैंड पे। When the tremors came early in the morning, जब tremors आता है मीन्स जब भूकंप के झटके आते हैं मॉर्निंग में बिल्कुल सुबह सुबह, the family was sleeping, उस समय पूरा परिवार सो रहा था, मीन्स सारी पूरी फैमिली सो रही थी, सारी फैमिलीज जो थी वहाँ पे वो सब सो रही थी। अलमा's father saw the sea water recede, अलमा के फादर क्या देखते हैं, पानी क्या कर रहा है, पानी रिसीड हो रहा है मीन्स वापस जा रहा है, धीरे धीरे वापस जा रहा है। He understood that the water would come rushing back with great force, और वो समझ जाते हैं कि ये जो पानी समुद्र का वापस जा रहा है इसमें बहुत तेज फोर्स के संग लहरें आएंगी और बहुत तेजी से ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब समुद्र में भूकंप आने वाला होता है तो एक बार नदी की लहरें, समुद्र की लहरें पीछे जाती हैं, उसके बाद अचानक से बहुत फोर्सली आगे आती हैं। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place, वो जल्दी से सबको उठाते हैं और उनको सबको सेफ प्लेस पर ले जाने की कोशिश करते हैं। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जब सारे के सारे परिवार वाले भाग रहे थे उनके दादाजी को चोट लग जाती है सर पे किसी चीज से और वो जमीन पर गिर जाते हैं। Her father rushed to help him, और उसके पापा अलमास के फादर क्या करते हैं, भागते हैं हेल्प के लिए। Then came the first giant wave that swept both of them away, और तब एक बहुत तेज लहर आती है समुद्र में और दादाजी और उसके पापा जो फादर है उसके दोनों पानी में बह जाते हैं। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree. Clinging means पकड़ के लटकते हैं, जो पकड़ के खड़े होते हैं उसको कहते हैं clinging करना। तो अलमास की मदर और उनकी आंट दोनों पेड़ कोकोनट ट्री की पत्ते को जोर से पकड़ के खड़ी हैं, उनके पेड़ को पकड़ के खड़ी हैं। कॉलिंग आउट टू हर, अलमास को बुला रही है वहां से। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और क्या होता है वहां पे, ये जो तेज लहरें आ रही हैं ये उस पेड़ को भी उखाड़ ले जाती हैं, बहा ले जाती हैं अपने संग, और वो सारे दोनों लोग आंट और अलमास की मम्मी भी साथ में बह जाती हैं। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास को क्या दिखता है, एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा दिखता है जो पानी में तैर रहा है। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड, और वो बेहोश हो जाती है। फेंटेड मीन्स बेहोश होना। व्हेन शी वोक अप, जब वो वापस से जागती है, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कामोटा, मतलब जब वो उसको होश आता है तो वो अपने आप को कहाँ पाती है, कामोटा के एक हॉस्पिटल में। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। मीन्स लिटिल गर्ल जो छोटी बच्ची है वो इतनी ज्यादा सदमे में चली गई होती है जो कि वो किसी से कुछ भी नहीं बात करना चाहती इस बारे में, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड और डिस्ट्रेस्ड हो चुकी होती है। शी वॉज ट्रॉमेटाइज्ड टिल नाउ, वो अब तक ट्रॉमेटाइज्ड है। तो these are all of about part 1. Okay, this is about tsunami part 1. We have understood and learned about Andaman and Nicobar. Now we have to start part 2. Tilly Smith, a British school girl, ब्रिटिश स्कूल की एक स्टूडेंट है जिसका नाम है टिली स्मिथ।
was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? Now let's understand the thing first. यहाँ पे कह रहे हैं कि टिली स्मिथ एक लड़की है, ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वो स्कूल जाती पढ़ने के लिए, और उसने बहुत सारे लोगों की सुनामी से जान बचाई जब फुकेट बीच है थाईलैंड में, वहां पे जब सुनामी आई थी उसमें उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे इंटरव्यू देने से, जो टीवी पे इंटरव्यूज होते हैं उनमें उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वो इंटरव्यू नहीं देगी, और उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो उसे हीरोइन बनाए। ओके, नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये स्टोरी यहाँ पे थाईलैंड से रिलेटेड है, मतलब थाईलैंड की स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन सदर्न थाईलैंड। बीच रिसोर्ट पे ये पूरी स्मिथ फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई है। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ कौन है? 10-year-old स्कूल गर्ल है। हर सिस्टर वॉज 17 years old, और उसकी जो सिस्टर है वो 7 years old है। Their parents were Penny and Colin Smith, और उसके पेरेंट्स का नाम, उन दोनों बच्चियां जो हैं, इनके पेरेंट्स का नाम पेनी और कॉलिन स्मिथ है। It was 26th December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. यहाँ पे बता रहे हैं कि 26 दिसंबर 2004 को एक डेडली मतलब जानलेवा सुनामी आई थी, सुनामी लहरें थी जो आई थी थाईलैंड के बीच पर, और उस थाईलैंड के बीच पे जो अर्थक्वेक था, अर्थक्वेक ने उन लोगों को रोक रखा था। सुमत्रा, जो नॉर्दर्न सुमत्रा में जो अर्थक्वेक आया उसमें, उसके कारण उन लोगों को वहां पे रुकना पड़ा। मॉर्निंग में, बिल्कुल सुबह सुबह की बात है ये। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। द वाटर वॉज स्वेलिंग, स्वेलिंग मीन्स पानी बढ़ता जा रहा था। द वाटर वॉज स्वेलिंग, बढ़ता जा रहा था और इनकी ओर आगे आता जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ ने को रिमेंबर है, याद है ये चीजें। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, बीच तो काफी छोटा होता जा रहा था क्योंकि पानी की लहरें आती जा रही थी, बीच को छोटा करती जा रही थी, मतलब बीच में पानी काफी आगे तक आ गया था, बढ़ता जा रहा था। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, पेनी को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, टिली स्मिथ को लग रहा था कि कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family। यहाँ पे कह रहे हैं कि टिली स्मिथ ने देखा था कि उनको याद आ रहा था, ये सारी चीजें देखी तो उनको याद आने लगा वो ज्योग्राफी लेसन जो वो इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले पढ़ी थी। जस्ट कब? जब वो थाईलैंड के लिए आ रही थी अपनी फैमिली के साथ। वो क्रिसमस मनाने गए थे थाईलैंड ना, इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड में जब वो ज्योग्राफी लेसन ले रही थी 2 वीक्स पहले, तो उस समय उनकी मैम ने उनको सुनामी के बारे में पढ़ाया था, वर्लपूल्स के बारे में पढ़ाया था, जो कि वीडियो देखा था उन्होंने, और वो सारी चीजें ज्योग्राफी के लेसन्स टिली स्मिथ को याद आ रहे थे। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम, बबल एंड फॉर्म whirlpools। टिली ने क्या देखा था कि सी मतलब समुद्र धीरे धीरे स्लोली राइज कर रहा था, बढ़ रहा था, ऊपर उठ रहा था, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और बिल्कुल बबल्स फॉर्म करने लगा, और एक वर्लपूल टाइप बिल्कुल घना घना सा, बिल्कुल ऐसे राउंड शेप में पानी की मूवमेंट होने लगी थी, जो कि अंदर की ओर जा रही थी, डेप्थ में जा रही थी। She remembered that she had seen this in class in the video of a tsunami। उनको याद आ रहा था कि जो क्लास में सुनामी पर वीडियो मैम ने दिखाया था वो उनको याद आने लगा। That had hit the Hawaiian Islands in 1946, जो कि ये सुनामी, ये जो वर्लपूल्स थे, ये कब आए थे? हवाईन आइलैंड में 1946 में, जब मैम ने उनको इनका वीडियो दिखाया था। हर ज्योग्राफी टीचर ने दिखाया था।
had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. और तब उनकी ज्योग्राफी टीचर ने बताया था कि सुनामी अर्थक्वेक से भी आती है, वोल्केनोज से भी आती है और लैंडस्लाइड से भी आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। और टिली कहती हैं अपने, जैसे ही इनको ये सारी ज्योग्राफी लेसन की बात याद आने लगती है तो टिली सब अपनी फैमिली मेंबर्स को जोर से चिल्ला के कहती हैं कि चलो बीच से दूर चलें, बहुत दूर भाग के जाते हैं। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और उसने बताया कि समुद्र में भूकंप आया हुआ है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे, बिल्कुल कंफ्यूज थी। हिस्टेरिकल मीन्स मतलब अजीब तरीके की हरकतें करना या चिल्लाना या शाउट करना या रोना, वाइल्ड बिहेवियर दिखाना, वो हिस्टेरिकल होता है। तो वो बिल्कुल पागल सी हो गई थी। सेड हर मदर पेनी, अपनी मम्मी को बोलती है, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड। पेनी कह रही हैं कि मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होती है, बट अपनी डॉटर को इतना डरा हुआ देख के आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। और उन्हें लगता है कि सच में कुछ ज़्यादा सीरियस हो रहा है क्योंकि मेरी बेटी काफ़ी डरी हुई है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर, उनके पेरेंट्स और उनके बहन और उनको अवे फ्रॉम द बीच, अवे फ्रॉम द बीच ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। होटल में एक स्विमिंग पूल था, वहां पे लेके जाते हैं। A number of other tourists also have left the beach with them। और ये सुन के जब टिली और उनकी मदर की बातें हो रही हैं, फैमिली मेंबर्स की बातें हो रही हैं, तब अगल बगल के टूरिस्ट भी ये बातें सुनते हैं और वो लोग भी बीच छोड़ के वहां से भागने लगते हैं। Then it was as if the entire sea had come out after them। I was screaming, run! Here it is saying that कि जब ये लोग भागने लगे तो ऐसे लग रहा था लहरें इनके पीछे पीछे बहुत तेजी से आ रही थी। आई वॉज स्क्रीमिंग, और वो चिल्ला रही थी, रन, बहुत तेज दौड़ो, बहुत तेज वो चिल्लाई कि दौड़ो और तेज दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। और जो फैमिली थी वो कहाँ पे रहती है? थर्ड फ्लोर, होटल के थर्ड फ्लोर पे प्रोटेक्शन के लिए। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। और बिल्डिंग फिर भी खड़ी थी। विथस्टूड का मतलब होता है फिर भी खड़े रहना, बिना डैमेज हुए, बिना कोलैप्स हुए। तो विद द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स मीन्स इतना फोर्स था, सर्ज मीन्स फोर्स होता है, कि इतना मोमेंटम था, इतना फोर्स था सुनामी वेव्स का, फिर भी ये बिल्डिंग जो है खड़ी की खड़ी है। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो बीच पे रहते तो वो जिंदा नहीं रह सकते थे। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। और स्मिथ्स ने बाकी काफ़ी सारे टूरिस्ट से मिले वो लोग और देखा कि बहुत सारी फैमिली में लॉस हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खो दिया। थैंक्स टू टिली and her geography lesson, they had been forewarned। forewarned means पहले से किसी को बताना, किसी को सचेत करना। तो अब सब यहाँ पे टिली को थैंक्स बोलने आ रहे हैं कि थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, जिसकी वजह से आज हम पहले ही जानकारी लेके बच गए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। और टिली वापस अपने स्कूल जाती है जब इंग्लैंड में। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। और अपने सारे क्लासमेट्स को अपनी एक खतरनाक डरावनी स्टोरी सुनाती है। दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ लेट्स डू थर्ड पार्ट। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. Here, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लड़का अपने कुत्ते के संग यहाँ बैठा है। हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मे बी सुनामी हैज कम। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। काम, लड़का बिल्कुल काम होके बैठा है। ब्लू सी थी, रूइन हर्ट्स, और मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुनामी की वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ और ये बच्चा अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को खो दिया है इसने, और ये चुपचाप बैठा है बिल्कुल अलोन, दुखी होकर। लाइक दिस आप इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं पूरी स्टोरी इसके बारे में। जस्ट यू कैन इमेजिन एंड डू इट। Before the giant waves slammed into the coast, in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was
about to happen. They fled to safety. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. Here what does it want to say? It wants to say कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जायंट वेव्स जब आती हैं कोस्ट वगैरह में, इंडिया या श्रीलंका में आई थी, तो वहाँ के जो वाइल्ड या डोमेस्टिक एनिमल्स थे उन सबको ऐसे लग रहा था पहले से ही इसके बारे में पता चल गया था. दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो सब सेफ्टी की ओर भागने लगे थे. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, ये देखी हुई चीज़ है कि एलिफेंट्स भागने लगे हायर ग्राउंड की ओर जहाँ ऊंचाई हो, ताकि पानी की लहरें इतनी तेज ना आए कि वो उस ऊंचाई तक पहुंच सकें. डॉग्स बाहर जाने से मना करने लग गए, मतलब नहीं जा रहे थे बाहर. फ्लेमिंगोज जहाँ वो नीचे बिल्कुल समुद्र के नीचे रहते हैं और वहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं, उस एरिया में भी जाने से कतरा रहे थे. और जू एनिमल्स जो थे वो अपने शेल्टर्स में जाने के लिए भागने लगते हैं एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और वो बाहर ना आने के लिए अंदर जा रहे होते हैं, मतलब उनको बहुत डर लग रहा होता है, वो अपने घर में भागते हैं. मीन्स यहाँ पे कहने का है कि ये एक आई विटनेस है, ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है जो कि हमें बताता है कि एनिमल्स को अगर अर्थक्वेक या कुछ भी इंसिडेंट होने वाला होता है तो उनके वाइब्रेशंस उनको पहले ही मिल जाते हैं और वो पहले से ही सेफ्टी की ओर भागने लगते हैं. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration, that they can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. यहाँ पे कह रहे हैं कि एनिमल्स को पहले से ही पता चलता है. कितने लोगों ने, बहुत लोगों को ये विश्वास है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है, छठी इंद्रिय होती है. छठी इंद्रिय मतलब सिक्स सेंस होता है, जो एक्स्ट्रा पावर होती है, मीन्स कुछ को बहुत ज़्यादा जल्दी एक्वायर करने की, एक्सपीरियंस करने की. मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जब अर्थ शेक हो रहा है तो वो चीज़ पहले ही पता चल जाती है एनिमल्स को, तो वो सेफ्टी की ओर भागने लगते हैं या जाने लगते हैं. कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि एनिमल्स के पास हियरिंग पावर एक्स्ट्रा होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर अर्थ वाइब्रेशन सुनने की शक्ति आ जाती है, उसको वो महसूस कर सकते हैं. दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर, और जो डिजास्टर होने वाला है, जो नुकसान होने वाला है, आने वाला है, उसको वो पहले से ही जानने लग जाते हैं. रादर ह्यूमंस को ये चीज़ें लेटर ऑन पता चलती हैं, क्योंकि ह्यूमंस रियलाइज ही नहीं कर पाते कि व्हाट्स गोइंग ऑन. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हमें नहीं पता है, या हम कह सकते हैं कि हम नहीं जानते कि एनिमल्स के सिक्स सेंस होती है या नहीं होती. But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries. यहाँ पे कह रहे हैं but not many animals have been reported dead. यहाँ पे कह रहे हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडियन ओशन में एक बार जायंट वेव्स निकली थी, वहाँ पे उनको कहा जा रहा है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा मरे थे, बट एनिमल्स के लिए कहा गया कि बहुत ही कम संख्या थी इनकी. इनको पहले से ही सब कुछ रिपोर्ट हो गया था, मतलब आभास हो गया था एनिमल्स को, इसलिए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनिमल्स की डेथ नहीं हुई थी ज़्यादा. सो अलॉन्ग इंडियाज कटलर कोस्ट where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. अब यहाँ पे कर्लर कोस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि जब वहाँ पे जायंट वेव्स आई थी तब भी वहाँ पे पीपल पेरिश हुए थे, पीपल खत्म हुए थे. पेरिश मतलब डिस्ट्रॉय होना, खत्म होना. तो पीपल को ज़्यादा लॉस हुआ था. बफलोज और गोट्स और जो डॉग्स थे उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. यहाँ पे बता रहे हैं याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वहाँ पे वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, जैसे एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं और बर्ड्स की 130 स्पीशीज हैं. 60 विजिटर्स वर वॉच्ड अवे फ्रॉम द पटनंगला बीच इनसाइड द पार्क. पार्क के अंदर एक पटनंगला बीच था, उसमें 60 विजिटर्स जो देखने आए थे जू को, नेशनल पार्क को,
उनमें 60 विजिटर्स जो आने वाले थे वो वहाँ पे पेरिश हो जाते हैं, उनको नदी समुद्र की लहरें अपने संग बहा ले जाती हैं। बट नो एनिमल कार्कासेस वर फाउंड, मीन्स किसी भी तरीके का एनिमल्स को नुकसान नहीं हुआ था, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफलोज, ओनली 2 वाटर बफलोज वहाँ पे जिनको नुकसान हुआ था, जिनकी डेथ हुई थी, बट एनिमल्स को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, जस्ट सुनामी आई थी उसके जस्ट 1 घंटे पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटानंगला बीच। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वहां पे जब लोगों ने देखा 1 घंटे पहले, जस्ट 1 घंटे पहले याला नेशनल पार्क में 3 एलिफेंट्स पटानंगला बीच को छोड़ के वहां से जल्दी जल्दी भाग गई थी। अ श्रीलंकन जेंटलमैन who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. गैले एक पर्सन है, श्रीलंकन जेंटलमैन है, जो कि अपने 2 डॉग्स को बाहर ले जाने के लिए, आउटिंग के लिए ले जाना चाहते थे, बट दे रिफ्यूज टू गो आउट ऑफ द हाउस। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो, जनरली वो एक्साइटेड होते थे बाहर जाने के लिए, आउटिंग के लिए, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और वो वहां पे जाने से उस दिन मना कर देते हैं, बाहर सारे दोनों जो डॉग्स रहते हैं वो बाहर जाने से रिफ्यूज कर देते हैं, और इस तरीके से उन्होंने मिस्टर गेले की लाइफ बचा लिया। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 2 पार्ट 3। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।